हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी एंड आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देख रहे होंगे। ओके, बिफोर आई स्टार्ट आई विल एक्सप्लेन दैट हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। So we already done with the previous part, that is the till section number 152, that is the appointment of a director, in which we already discuss about the retirement and rotations and all of things we already discussed. Okay, let's start with the section number 161. 160, before that we will do the 160 and then 161 and then 162, that is talking about appointment of the director to be voted individually. Students, see, if you are doing your study with the consistency, that will give you the much better result as instead of doing the study with the bulk. Like if you are thinking that before the 1 month of exam you will get the exemption in a law, या फिर you will do the entire revision of the group 1 or group 2, that is your big misunderstanding. CA is all about the consistency, hard work, and do with the like slowly, small part. You can't break anything in a one like short. You have to give a time which will be break like day by day. तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, एंड यू विल मेंटेन दैट प्लान एट द एंड ऑफ द एग्जाम, एंड यू आर मेंटेनिंग योर एंटायर डिटेल, मतलब लाइक एंटायर प्लानिंग इन इनटू द एग्जीक्यूशन व्हिच यू ऑलरेडी प्लान। डेफिनेटली सी बात है, मैं लिख के दे सकती हूँ, यू विल गेट अ सक्सेस विदाउट एनी डाउट। आपने जो प्लान्स बनाए हैं उन पर आप विजिट रहिए एंड फॉलो दिस प्लान्स। तो मैं भी आपके लिए हेल्प के लिए अवेलेबल विदाउट एनी चार्जेस। लोग इसके लिए सेशंस कंडक्ट कराते हैं एंड लाइव सेशंस हो गए, मीटअप्स हो गए, बट आई एम ऑलवेज बीइंग देयर विदाउट एनी कॉस्ट। इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पर रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो भी हमारी न्यू स्कीम्स आई हैं सीए से रिलेटेड की न्यू कोर्स, उनको भी हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, so you can ask without any doubt. Okay, without waste our time, let's continue with the section number 160 and then 161, and thereafter we will start with the 162, that is talking about appointment of a director to be voted individually. Okay, let's start. Okay, so in which we will discuss about the section number 160. Just a minute. I think it took a time. Okay. Section number 160, right of a person other than the retiring director to stand for a directorship. So students, here is talking about the appointment of a director, but other than retiring director. I already told in a section number 152 that कि retirement of director कैसे होगा और उसका rotation कैसे होगा और retiring director का appointment कैसे होगा और किन किन कंडीशंस में रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। आई ऑलरेडी talk about in a previous video. Okay, so let's start with the right of a person other than the retiring director to stand for a directorship. Along with, we will discuss about the rule number 13 of the company's appointment and qualification of a director, rule 2014. Students, मैं ये नहीं कहती कि आप rules भी याद करो, but at least you should have the knowledge about the sections. आपको section quote करना आना चाहिए with the act also. Okay, so section आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। Okay, let's start with the requirement of the written notice, ठीक है। जो लाइक पर्सन वांट टू स्टैंड फॉर हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर, पर्सन खुद जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है, या फिर जो कंपनी का मेंबर है बट वो नाम प्रपोज करना चाहता है किसी अनदर पर्सन का तो स्टैंड फॉर हिज द डायरेक्टरशिप, तो उसका भी नाम वो कंपनी को दे सकता है। तो देयर इज अ टू कंडीशन, पर्सन जो खुद बनना चाहता है डायरेक्टर और एक मेंबर जो खुद किसी पर्सन को बनाना चाहता है डायरेक्टर, दोनों की कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब जो पर्सन, लेकिन इसमें वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, उसका अलग प्रोसीजर दिया गया है। ओके, लेट्स टॉकिंग अबाउट द पर्सन स्टैंड फॉर अ डायरेक्टरशिप अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर। वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी किसी भी जनरल मीटिंग में, या वो एजीएम हो सकती है या फिर ईजीएम भी हो सकती है, लेकिन उसको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में under his hand signifying his candidature as a director at least 14 days before the meeting at the registered office of a company। पर्सन जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है, अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर, वो अपना नाम क्या है 14 डेज पहले एटलीस्ट नोटिस देगा और साइन करेगा, सिग्निफाई करेगा दैट ही स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। कंपनी को कहाँ देगा? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां वो कंपनी का अपना नाम देगा। अब इसमें आ जाते हैं मेंबर। मेंबर जो चाहता है कि किसी भी पर्सन को स्टैंड फॉर अ डायरेक्टरशिप, यहाँ पर क्या करेगा वो अपना नाम, लाइक सम मेंबर्स हो गए हमारे, टू प्रपोज हो गए हमारे एज अ डायरेक्टर, नोटिस देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस, सिग्निफाई करेंगे कि उसकी इंटेंशन क्या है। वहां पर भी 14 डेज का क्राइटेरिया था, यहाँ पर भी 14 डेज का क्राइटेरिया है, बट क्या है उस पर्सन से साइन कराना पड़ेगा कि हाँ वो स्टैंड है डायरेक्टरशिप के लिए, और वो खुद बंदा भी साइन करेगा जो मेंबर है कि हाँ मैं, मेरी इंटेंशन ये है और मैं इसको चाहता हूँ डायरेक्टर बनाना। दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक मिनट। अब आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट, कितना फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट। रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट क्या है? जो नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ साथ, चाहे वो नोटिस कौन दे रहा है, चाहे वो मेंबर दे रहा है या फिर जो पर्सन, जो फर्स्ट पार्ट पे पढ़ा था ये वाला, ए पार्ट पे, कि वो खुद डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसे नोटिस देना पड़ेगा। और डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा, या फिर सच हायर अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब, या फिर जो रूल्स में प्रेस्क्राइब करी गई है वो अमाउंट उसको डिपॉजिट करानी पड़ेगी। और या फिर जो भी हायर अमाउंट है, लेकिन अभी क्या है 1 लाख रुपीज स्पेसिफाई कर रखी है, तो उस नोटिस के साथ साथ वो 1 लाख का भी डिपॉजिट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट कराएगा। लेकिन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर हमें 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपीज डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, so there is no need to give a 1 लाख रुपीज in these 3 conditions। अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो वहां पर कंडीशन नहीं है 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराने की, या फिर जो डायरेक्टर रिकमेंडेड करा गया है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के द्वारा अंडर सेक्शन 178, वहां पर 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो डायरेक्टर रिकमेंडेड करा गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जहाँ पर देयर इज नो सच, यहाँ पर मतलब अगर नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी ने रिकमेंड करा है नाम तब भी जरूरत नहीं है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नाम को नॉमिनेट करा तब भी वहां पर 1 लाख रुपीज डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स वहां बैठे बैठे मेरे साथ बोलेंगे कि 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट कराना पड़ेगा नोटिस के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर 3 एक्सेप्शन है। इफ देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ देयर इज अ नेम जो कि रिकमेंड करा गया है हमारा नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी के द्वारा, या फिर जो नाम रिकमेंड करा गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इन तीनों कंडीशन में देयर इज नो नीड टू गिव अ अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। ओके, अब एक्शन बाय कंपनी। अब यहाँ पे यहाँ तक था पर्सन का काम, कि जो इंटरेस्टेड है क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, 14 डेज बिफोर एटलीस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी पे नोटिस देना पड़ेगा 1 लाख रुपीज इन ऑल दैट। अब आ जाता है कंपनी को मिल गया है नोटिस, अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इन्फॉर्म करेगी अपने मेंबर को कि हमारे पास ये काम नाम आया है, उनके नोटिस आए हैं। अब ये सब दिए जाएंगे मेंबर्स को, ठीक है। और कितने दिन पहले देगी कंपनी मेंबर्स को? एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, मतलब 14 दिन पहले वो पर्सन नोटिस दे रहे हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब कंपनी के पास नोटिस आ चुके हैं, अब 7 दिन पहले, मतलब कि जिस दिन मीटिंग होने वाली है उससे 7 दिन पहले मेंबर्स को ये नोटिस दिया जाएगा, नोटिस सर्व करा जाएगा कि हाँ ये नाम आया। अब कैसे दिया जाएगा? कंपनी इन्फॉर्म करेगी मेंबर्स को सच कैन, या तो इंडिविजुअल नोटिस सर्व करके या फिर बाय प्लेसिंग अ नोटिस। इंडिविजुअल नोटिस कैसे सर्व करेगी? इलेक्ट्रॉनिक मोड, मेल के थ्रू, ठीक है, जो कि वो प्रोवाइडेड देयर एड्रेस फॉर द राइटिंग पर्पस। मेल्स हो गए, बहुत सारे मतलब लाइक वेज है इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में, या फिर बाय प्लेसिंग अ ऑफ सच कैंडिडेट। जिन जिनके नाम आया है, या फिर एक काम करो अपनी वेबसाइट पर उनके नेम स्पेसिफाई कर दो कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है डायरेक्टर बनने के लिए, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर हैं ये सब। तो क्या करो, या तो प्लेस कर दो नोटिस को वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर, तो वहां पर क्या है सारे मेंबर जाके देख लेंगे। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा? अगर
इंडिविजुअल नोटिस सर्व नहीं किया है, इफ व्हेन देयर इज नो नीड टू सर्व इंडिविजुअल, कब जरूरत नहीं है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू सर्व द इंडिविजुअल नोटिस, अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर दें नॉट लेस देन एटलीस्ट 7 days बिफोर आपको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, इसमें एटलीस्ट वंस इन अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर in a principal vernacular language of a district in which registered office of a company, मतलब सपोज दैट तमिलनाडु में ऑफिस रजिस्टर्ड है कंपनी का, तो एक तो उस लैंग्वेज में आप पब्लिश करा दो, एडवर्टीज करा दो, या और नहीं है स्टूडेंट्स, एंड और एक बार इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको सर्कुलेट कराना पड़ेगा उसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ओके, तो कहाँ पर हम लोग ये सर्कुलेट कराएंगे, जिसमें कंपनी का ऑफिस रजिस्टर्ड है, सबसे पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, और एक बार इंग्लिश न्यूज़पेपर में। अब आ जाते हैं रिफंड। रिफंड तो 1 लाख रुपए, अब मीटिंग हो गई कंपनी, अब मीटिंग हो गई, अब मीटिंग में कैसे होगा, सपोज दैट अब कंपनी में किसको बनाया गया, मतलब डायरेक्टर मेंबर्स के द्वारा, अब उसका अमाउंट रिफंड किसको मिलेगा, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट कर लिए थे। अब 1-1 लाख रुपए किस किस को मिलेंगे, जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो किस किस पर्सन को वापस मिलेगा, जिन्होंने वो डिपॉजिट करा था, जिनको 25% वोट्स मिली हैं कास्ट इन फेवर ऑन अ शो ऑफ हैंड और अ पोल, और ऑन अ पोल, मतलब जिनको 25% टोटल वैलिड वोट कास्ट इन फेवर आई एम मोर देन 25%, तो उनको 1 लाख रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा। और डिपॉजिट जो हुआ है वो कब रिफंड नहीं होगा, जिनको लेस देन 25% वोट्स आई हैं, मजाक समझ रखा है, कोई भी आएगा मतलब अपना नाम देगा डायरेक्टरशिप के लिए और उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या है, इसमें हम लोग फोरफिट कर लेंगे 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब आ जाते हैं, और यहाँ पर देखो स्पेसिफाई करा है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन रिटायरिंग डायरेक्टर मींस द डायरेक्टर रिटायर बाय द रोटेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 160 की हम लोग कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर। अब आ जाते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पशन दी गई हैं, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम्पशन से एमसीक्यू बनते हैं स्टूडेंट्स, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निधि कंपनी जो होती है, हमारा 1 लाख है, लेकिन निधि कंपनी के केस में 10,000 रुपीज का डिपॉजिट है, यहाँ पर 1 लाख है कंपनी में, लेकिन निधि कंपनी में क्या है, आपको 10,000 रुपीज देकर आप हो सकते हैं, मतलब अपॉइंट। अब आ जाते हैं क्लैरिफिकेशन, सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या है कि 1 लाख रुपए का डिपॉजिट जो है वो रिफंड हो जाएगा, रिफंडेड इफ पर्पज फेल टू, जहां पर अगर आपको लेस देन 25% भी वोट्स आ रही है, उस केस में भी आपको 1 लाख रुपए का डिपॉजिट जो है वो रिफंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 160 किस पर अप्लाई नहीं होगा, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट। अब सेक्शन 160 किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जेम्पशन वाला पार्ट। एक तो निधि कंपनी में 10,000 एप्लीकेबल हो गए इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज। अब आ जाते हैं, फिर हमने बताया था कि ऊपर दूसरा वाला पार्ट जो कि बात कर रहा था कि सेक्शन 8 कंपनी पे क्या है, अगर मान लो वोट्स आई हैं लेस देन 25%, तो उस केस में भी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अब आ जाते हैं एग्जेम्पशन, सेक्शन 160 किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, एक तो गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई सब्सिडरी जो कि गवर्नमेंट कंपनी की है, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन इफ दे हैव नॉट, मतलब दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उन्होंने 92 और 137 का कॉन्ट्रावेंशन ना करा हो। ये देखो नीचे दे रखा होगा, ये रहा, ये दे रहा, in all the three exceptions हो गया हमारे, available only committed the default in filing the financial statement, the section 137 और annual return 92 with the registrar। कौन कौन से 3 कंडीशन, एक तो ये कि 160 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, और बी कौन सी है, सेक्शन 160 प्राइवेट कंपनी पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और 160 किस पर नहीं होगा एप्लीकेबल, सेक्शन 8 कंपनीज पे नहीं होगा, लेकिन उसके आर्टिकल ने प्रोवाइड करा है इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर बाय, मतलब exemption from the 160 is also applicable to section number 8 companies whose article provide for the election of directors by the valid, तो उस केस में भी क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगी 160 से। तो 3 कंपनीज पर है, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जिनका आर्टिकल में प्रोवाइड करा गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द वैलिड, तो उस केस में क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उनको सेक्शन 160 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ देयर इज अ वन कंडीशन, दे हैव नॉट कॉन्ट्रावेंटेड एनी, मतलब लाइक सेक्शन, मतलब फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न 92 50 रजिस्ट्रार,
तीनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रावेंशन ना करा हो, दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट 160 वाला पार्ट. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट. That is the section 161. Just a minute. 161. Okay, let's start with the appointment of the additional directors, alternate directors और director to fill the casual vacancy and nominee director. मतलब यहाँ पर हम 4 directors के बारे में बात करेंगे. That is the additional directors, alternate directors और director to fill the casual vacancy and the nominee director. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे additional director. Students, इसका IMP means important part. मतलब आपको ये करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी आता है इससे. सो लेट्स जस्ट फोकस. एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 160 सबसेक्शन 1. आर्टिकल ऑफ अ कंपनी में कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट होगा एनी पर्सन एडिशनल टाइम. मतलब जो आर्टिकल ऑफ अ कंपनी है में कन्फर कर सकता है. आर्टिकल ऑफ द कंपनी में लिखा हो सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उनके पास पावर है अपॉइंट करने की कौन से डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम. एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करा जा सकता है. अ पर्सन जो कि फेल अपॉइंटेड हो गया ना जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर. स्टूडेंट्स, मतलब अगर कोई पर्सन उसको मतलब लाइक फेल हो चुका है अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर तो वो मतलब एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता. एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. सो दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज अपॉइंट कर लिया एडिशनल डायरेक्टर को, तो जो आने वाले नेक्स्ट एजीएम है वहां तक उसका टेन्योर रहेगा. या फिर ऑन द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी होल्ड विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, तो मतलब क्या सपोज दैट एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर में होने वाली थी लेकिन वो एडजर्न हो गई, तो वहां तक भी वो ऑफिस होल्ड कर सकता है. और उस एडजर्न मीटिंग पे जब हेड होगी एजीएम तो वहां पर उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा. एडिशनल डायरेक्टर के बारे में 3 चीज याद रखना. जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड करा मतलब उसमें पावर लिखी होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर एडिशनल डायरेक्टर को. जो पर्सन फेल हो चुका है अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर तो वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. और उसका टेन्योर क्या रहेगा एडिशनल डायरेक्टर का, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग या फिर लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम हेल्ड व्हिचएवर इज लेटर अर्लियर. मतलब जो दोनों में से पहले होगा. तो सॉरी मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया. दैट इज कि जो ड्यू डेट होती है एजीएम की वहां तक ही एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर होता है ऑफिस होल्ड करने का. दिस इज ऑल अबाउट द एडिशनल डायरेक्टर. लेट्स कंटिन्यू विद द अल्टरनेट डायरेक्टर. ये सब वही लिखा हुआ है. मतलब ये देखो, मैंने ये वाला पार्ट बताया था ना. टर्म ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर इज लिमिटेड टू होल्डिंग द एनुअल जनरल. अगर एनुअल जनरल मीटिंग ड्यू डेट पे नहीं हुई है तो उसका टर्म वहां पर भी एंड हो जाएगा और वो एक्सटेंड नहीं हो सकता इवेंचुअली. मतलब ड्यू डेट, मतलब जो ड्यू डेट होती है हमारी एजीएम की वहां तक उसका ऑफिस होल्ड होगा. ठीक है, सो अल्टरनेट डायरेक्टर. स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग अ हार्ड वर्क, सो आई होप आप मेरी वीडियोस को भी इतना सपोर्ट करें. मतलब लाइट भी नहीं आ रही है और एसी भी नहीं चल रहा मेरे को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं. तो स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग, so don't worry, I'm always give my efforts to my students. Let's start with the alternate directors. ठीक है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 दैट इज टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट डायरेक्टर. का मतलब क्या होगा अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोलो. मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मुझे कहीं जनरली आउट ऑफ इंडिया जाना है, कुछ जाना है, तो मतलब लाइक बाहर जाना है, तो किसी भी काम से पर्सनल प्रोफेशनल जो भी है. और मेरी अब जगह पे कंपनी में कौन रहेगा तो वहां पर क्या है एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करा जाता है और वो उस डायरेक्टर के प्लेस पर काम करता है. और वो जनरली मतलब उसके पास सारे वो पावर होते हैं जो एक ओरिजिनल डायरेक्टर के पास होते हैं. तो हम इसको बात करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय दिस आर्टिकल या फिर रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप टू एनी अदर पर्सन इन अ कंपनी या फिर होल्डिंग द डायरेक्टरशिप इन अ सेम कंपनी टू एक्ट एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर द during the absence of a period not less than the 3 month for the from the India. ओके, तो मैं आपको बताती हूँ. या तो आर्टिकल
में ऑथराइज करा गया है कि अल्टरनेट डायरेक्टर मतलब अपॉइंट होगा, मतलब कि कैसे अपॉइंट होगा, मतलब कि प्रोसीजरल पार्ट, या फिर रिजोल्यूशन पास करा जाएगा कंपनी के द्वारा जनरल मीटिंग कि कौन अल्टरनेटिव डायरेक्टर बनेगा। लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर दो ही बन सकते, कौन? एक तो उसी सेम कंपनी में वो डायरेक्टर है तो वो दूसरे डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, या फिर कोई डायरेक्टर दूसरी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर है तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। दिस इज सिंपल। मतलब अगर सेम कंपनी की बात हो रही है, अगर आप सेम कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या फिर अगर हम अनदर कंपनी की बात करें, आप अनदर कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठे हो तो भी आप कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इट मीन्स यू कांट होल्ड मोर देन वन अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। दिस इज द पार्ट। ओके, सो देयर इज अ, और वो कब होल्ड करेगा? टू एक्ट एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ कंपनी, मतलब नॉट लेस देन, मतलब कम से कम वो 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर गया हो, तो तब हम during his absence for a period not less than 3 months from the India, तो हम क्या करेंगे? अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस सपोज दैट, मैं यहाँ पे सेक्शन 149 सेक्शन 6 की बात हो रही है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो कंपनी मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है, तो अब उसके लिए अल्टरनेट डायरेक्टर चाहिए। अब अल्टरनेट डायरेक्टर तभी अपॉइंट होगा, मतलब वो सेक्शन 149 सबसेक्शन की भी कंडीशन को फुलफिल कर दे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट पार्ट। सिंपल लगा स्टूडेंट, मतलब आपको लेमन लैंग्वेज में पढ़ो, लो की लैंग्वेज को, तो आपको काफी इजी लगेगा। अल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट परमिशेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर इन विच whose place he has been appointed shall vacate the office if and when original director returns। अब कब तक अल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस को? कब तक? मतलब एक तो अगर वो जितना टाइम परमिट करा गया था रिजोल्यूशन पास या फिर आर्टिकल में, हाँ कि उतने टाइम तक वापस आ जाएगा वहां तक, या फिर जहां तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था कि हाँ अब तो यहाँ पे इसका लाइक जो भी वैकेशन होता है या फिर उसका रोटेशन होना था, जो भी है किसी भी कंडीशन से वहां उसका टेन्योर पूरा हो रहा था, तो वहां तक विच एवर इज अर्लियर, मतलब आप कह सकते हो विच एवर इज अर्लियर। जनरली क्या होता है कि ये दो कंडीशन अराइज होती है, या तो जहाँ तक परमिशन दिया गया था कि टाइम आप यहाँ तक अल्टरनेट ऑफिस होल्ड करोगे जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस नहीं आ जाता, फिर ओरिजिनल डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म होने वाला है, अब वो ऐसा तो है नहीं कि अब उसकी जगह उसको रख लेंगे डायरेक्टर बनने, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अब उसका भी वैकेशन कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इफ द टर्म ऑफ द, देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात ना वही लिखी हुई है, इफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर to the return of India, any provision for the automatic reappointment of retiring director in default of shall apply, not apply to the alternate director। मतलब जो भी है प्रोविजन वो सारे ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगेंगे, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, तो पावर भी बता दी मैंने कि कौन किसके पास पावर है अपॉइंटमेंट की। सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्टरनेट डायरेक्टर। स्टूडेंट्स मैं काफी लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ना कि कोई ट्रिकी पार्ट है, और सबसे बेस्ट पार्ट मैं तो यही बोलूंगी, वांट टू क्लियर योर सी एग्जाम, स्पेशली अगर आप एग्जामिशन चाहते हो लॉ में, आप सिर्फ आईसीआई के मटेरियल से ही रिवीजन करो, इजीली हो जाएगा। देयर इज नो वास्ट, मतलब होता है ना, एक चार्ट पेपर दे देंगे कि वो 10 पेज का, उसको पढ़ के चले जाओ और आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर इन अ सीए फाइनल, और आपको एक लॉ की लैंग्वेज प्रॉपर्ली राइट करनी आनी चाहिए, प्रॉपर्ली आपको लीगल वर्ड्स लिखने आने चाहिए। आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपकी बात मतलब लाइक कि यू हैव टू रिप्रेजेंट द फर्टिनिटी। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप आईसीआई को इज अ गॉड, डोंट अंडर एस्टिमेट एट ऑल द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई। आप उसको फॉलो करो और इससे ही पढ़ो, ट्रस्ट मी, आई एम द लाइव एग्जाम्पल। मैंने अपनी इनिशियल से टिल द एंड आईसीआई की बुक से ही पढ़ा था, और मैं वो बुक भी दिखा दूंगी, अभी वो मेरे ड्रॉर में रखी हुई है, लॉ की बुक। उस पे मैंने हाईलाइट कर करके उसके पेजेस भी मतलब टर्न होने से डर लगता था कि वो मतलब फट ना जाए। इतने रिवीजन कर लिए थे, नंबर ऑफ रिवीजन मैंने अच्छे मतलब सिक्योर करा उसमें, जिसमें कि मेरा पेपर फुल अटेम्प्ट नहीं हो पाया, मैंने ट्राई करा 85 का, जिसमें मेरे आए आई थिंक 55 आई सिक्योर। फ्रेंड्स अपना बेस्ट दो, इफ यू विल गिव योर बेस्ट। और आई थिंक मेरे 23 या 24 आए हैं एमसीक्यू में लॉ में, तो जस्ट गिव योर बेस्ट। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब, ना ही मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि
मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? गिव योर बेस्ट एंड सबसे बड़ी चीज बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। डजंट मैटर कि हु बिलीव इन योरसेल्फ, अपना बेस्ट दो। And yes, of course, you will get your success as soon as possible. In a November, you are a next chartered accountant. Okay, so this is all about the alternate directors. Okay, students, we will continue in the next video. Till time, bye bye, take care. Thank you so much.